watching News Hour Agenda. I'm Padmaja Joshi. Yesterday, Union Minister Narayan Rane was arrested within 24 hours of him having said that if I was present at the spot, I would have slapped Uddhav Thackeray because he doesn't even know how many years it's been since India's independence. Let's leave aside the merits of that case and let the court decide whether it is justified or not. But what we do want to talk about today is the wanton violence that was unleashed after Narayan Rane had already been arrested. The people behind the violence were Shiv Sainiks who roamed around Maharashtra, beating up those associated with the BJP, attacking offices and shakhas of the party, all apparently because they were angry about what Narayan Rane had said. This was supposed to be revenge. In Ulhasnagar, a BJP corporator was beaten. Even his 60-year-old father was not spared. In Mumbai's Kalyan, a BJP worker was beaten only because he tried to stand in the way of Shiv Sainiks trying to vandalize his party office. He was left battered, and these people, other than being political activists, are also citizens of Maharashtra. And they are now left wondering whether the Thok Tantra is a rule rather than the exception in Maharashtra. मैं अकेला था, मुझ पे हल्ला किया। सत्ता में होने के बावजूद अगर यह इन सारी बातों को सही छूटता, जो शब्द कहते हैं कि नॉन टॉलरेंस, तो सबसे ज्यादा नॉन टॉलरेंस आज महाराष्ट्र में है। इन्होंने मेरे गले में चेन थी, वह भी छीन के गए। जब मेरे को बचाने के लिए मेरा पुत्र आया, जब भी मेरे बेटे को पता पड़ा, तो उसके साथ भी उन्होंने मारापीटी की। और उसकी बात मतलब कहने का अर्थ है कि ये लोग प्रोफेशनल गुंडे हैं और लूटपाट भी कर जाते हैं। 12-15 लोगों में से अभी तक एक भी व्यक्ति को उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। किस तरह से यह तालिबानी शासन शिवसेना चला रहा है। What stands out, though, is not only the violence itself, but the glee after. Earlier in September last year, you would remember, when the BMC had demolished a part of actor Kangana Ranaut's house, soon after she spoke up against the Shiv Sena, the very next day, Shiv Sena mouthpiece Samna had gloated, "Ukhad diya." Now, a day after Narayan Rane's arrest and the attack on BJP across the state, party MP Sanjay Raut tweeted a cartoon showing a hen in a tiger's jaw. The obvious reference, of course, is the Sena symbol of the tiger and the insult to Rane, where Sainiks called him a hen thief, Murgi Chor. The real tragedy, though, is that even now, far from being repentant, leaders of the Shiv Sena continue to threaten violence, even now, perhaps emboldened by the complete inaction of the police. नारायण राणेला मला संदेश द्यायचा आहे। अरे तू काय सांग, तू कुठे यायचं, तुझ्या घरामध्ये घुसून मारण्याची ताकद आमच्यामध्ये आहे। माझं पोलीस प्रोटेक्शन थोडंसं बाजूला कर। हा संतोष बांगर शिवसेनेचा मावळा, छत्रपती रायाचा मावळा, एकटा येऊन तुझ्या जर चारी कोणी जर चीट नाही केलं, तुझ्या जर कोथळा जर बाहेर नाही काढला, तर संतोष बांगर. But that's not where the tragedy ends. The silence of people who are in alliance with the Shiv Sena is deafening. Not one of the parties has spoken, neither the Congress nor the NCP, even though these threats continue unabated. And those who are caught beating up people on camera are free birds. What happened to the concern for law and order and human rights all of a sudden? बिल्कुल गलत बयान है। इस तरह का लुक्खागिरी, थर्ड क्लास फुटपाथ छाप बात करना मुझे लगता है कि शोभा देता नहीं है। और मैं इस तरह के मुख्यमंत्री के बारे में बोल देना ऐसे शब्द, तो जो शिवसेना कर रही है मैं समझता हूँ ठीक कर रही है। कार्यकर्ता होता है, अपने नेता के तय उसके जज्बात होते हैं, अगर इस तरह बोलेंगे तो कार्यकर्ता जरूर भड़केगा। You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Joining us on the debate, we have Sanju Verma, national spokesperson of the BJP, Pratap Mukund Tumkar, the BJP worker that you saw in that video from Kalyan, Shailesh Pandey, supporter of the Shiv Sena, political analyst Vikram Singh, and political analyst Dr. Suman C. Raman. I want to start by asking you, Mr. Shailesh Pandey,
कि अगर कोई कैमरे पर पीट रहा है किसी दूसरे आदमी को तो उसको अरेस्ट अभी तक क्यों नहीं किया गया है? 4 अरेस्ट हुए हैं उल्लासनगर केस में। कल्याण के मामले का क्या हुआ? शैलेश पांडे जी, देखिए, सबसे पहले तो हमें हाँ जी, मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले तो हमें इस मामले की गंभीरता को समझना पड़ेगा कि किस तरह से नारायण राणे जी ने आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे, जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के और मुख्यमंत्री के साथ साथ शिवसेना पक्ष प्रमुख हैं, उनके बारे में किस अभद्रता के साथ टिप्पणी की थी, उनको झापड़ मारने की बात कही थी। और उसके बाद स्वाभाविक है कि कोई भी शिवसैनिक जिसके लिए उद्धव साहब ठाकरे आज कुटुंब प्रमुख हैं, एक देवता के समान हैं, एक पालक है और वो एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जिनकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, WHO करता है, केंद्रीय आरोग्य समिति करती है, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरीके से कोविड को कंट्रोल किया गया मुंबई में, उसकी तारीफ की। आज पूरी दुनिया, है कि अगर आप पूरा किसी देश, के बारे में ये बोलेंगे तो स्वाभाविक उद्धव साहब है की तारीफ कर रहा है, और आज उनके ऊपर अगर अभद्र टिप्पणी होती है तो हर आदमी की स्वाभाविक ठुकाई है होगी। कि शिवसैनिकों का आक्रोश, यही कह रहे हैं ना आप कि अगर आप किसी के बारे में बोलेंगे और लोगों को बुरा लग गया तो आपको तो जेल में डालेंगे, आपके पार्टी वालों को भी पीटेंगे, ये स्वाभाविक है। शैलेश जी, नहीं, देखिए, विषय ऐसा है कि यदि मुझे आप बताइए, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता भी सुन रही है, कि अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और वो भी भारत सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट का मिनिस्टर है, मोदी जी जिस कैबिनेट के प्रधानमंत्री हैं, बायोडेटा मत दो नारायण राणे का। आप मुझसे सवाल क्या पूछ रहे हैं? सवाल पे आइए। संवैधानिक पद पे हैं और वो इतना गैर जिम्मेदार, राज्यसभा के सांसद हैं, जिनको हमने हेवी इंडस्ट्रीज दिया है, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी से आते हैं, जो इतनी उम्र के हैं, जो कांग्रेस में रह चुके हैं, वो सब जानते हैं। सवाल क्या है आपका? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि देखिए, आज जो है जनता की आक्रोश बाहर आया, और जहां भी जो भी आंदोलन महाराष्ट्र में, मुंबई में या महाराष्ट्र के अन्य भागों में किया गया, वो पूरे लोकतांत्रिक तरीके से किया गया है। अच्छा, लेकिन आप शैलेश जी, आप कौन से लोकतंत्र का हिस्सा हैं ये मैं नहीं जानती, पर हमारे देश का जो लोकतंत्र और संविधान है उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि जा करके आप किसी भी आदमी को जाके पीट दीजिए। मुंबई के अंदर लोकतंत्र वो होता है, चलिए आपने नारायण राणे को जेल में डाला, वो अदालत फैसला करेगी कि उनको जेल में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, अभी वो बेल पे बाहर है। बाकी जो बीजेपी के दफ्तरों पे हमला हुआ वो किस लॉ में लिखा है? पुलिस की कार्रवाई है, महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई है। वो किस लॉ में लिखा है कि बीजेपी के लोगों को पीटा जाए? किस लॉ के हिसाब से पीटा गया? नहीं, तो किसने ये राइट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसने दिया कि मुंबई के अंदर वो शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर दगड़ फेंक करेंगे, पत्थर मारेंगे? किसने बड़े पत्थर बड़े डंडे लेकर लहरा रहे थे कि आओ हम देखते हैं, और ये राइट किसने दे दिया? संजू वर्मा, पहली बात तो शायद आपको सारे फैक्ट्स पता नहीं है। आप चैलेंज भी करोगे, आप उकसाओगे भी। अच्छा, आप उकसाएंगे। चलिए, संजू वर्मा को पहले जवाब देने दीजिए, फिर मैं प्रताप तुमकर से पूछूंगी, क्योंकि वो खुद मुंबई के ही हैं। संजू वर्मा, पहले आप जवाब दीजिए। हमसे उम्मीद क्या कर सकते? पद्मजा जी, प्लीज ये बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करवाइए, थैंक यू। पद्मजा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, what we need to understand is that the suo moto arrest of Narayan Rane was in gross violation of the established convention and gross violation of the constitution. Let me tell you clearly that Rule 22 of the Rules of Procedure let's talk of the about the Rajya violence. Let's talk about the violence. That matter is already in court. Let's talk about the violence. Padmaja, just let me spend 10 seconds on that, please. The Rule 22 of Code of Business of Rajya Sabha clearly says that Venkaiah Naidu, the chairman of the House, his permission should have been sought before the arrest of Narayan Rane was made.
No permission from Venkaiah Naidu was sought. Well, So, in A, that a case, the court would violation. have observed. The court today has said his arrest is justified. Custodial interrogation is not needed. Today, the court found enough reason to have him arrested. So that's as far as the investigation itself is concerned. I think instead of prejudging the court, let us move on and address the issue at hand. Sanju Verma. Okay, fine. You know, let me then complete what I'm saying without being interrupted by this man. Now, the key question here is, Padmaja, that whether you look at Nasik, Dombivli, Chiplun, Ulhasnagar, Kalyan, Mumbai, everywhere, the Shiva Sena goons have gone on a rampage. They have destructed property, they have indulged in vigilantism, और गणतंत्र की धज्जियां उड़ाने के बाद शिवसेना goons are actually saying कि हमारे उद्धव ठाकरे जी तो गणतंत्र के रखवाले हैं, हमारे लिए देवता समान है। अरे आपके उद्धव ठाकरे जी तो मातोश्री और वर्षा से बाहर नहीं निकले पिछले 1.5 साल में। कोविड के चलते लगभग 1,40,000 लोगों की मौत हो गई महाराष्ट्र में। आपको शर्म आनी चाहिए। One more thing, who is the home minister today after the exit of Anil Deshmukh? The home minister of Maharashtra is Dilip Walse Patil. इतना झूठी बात मत करिए वर्मा जी, मैं आपके इस बात पर आक्षेप लेता हूँ। आप एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल टाइम्स नाउ पर बैठकर इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा मत करिए। कौन कहता है उद्धव साहब ठाकरे रास्ते पर नहीं उतरे? उद्धव साहब ठाकरे हर जगह गए, महाराष्ट्र के हर भाग में गए, कोविड के सेंटरों का विजिट किया, उन्होंने सब किया। अभी जो बाढ़ आई थी कोंकण गए, कोल्हापुर गए, कोंकण का दौरा किया, कहाँ नहीं गए वो? एक सेकंड शैलेश पांडे, आपने बोला कि आपको उकसाया गया, शिव सैनिक को उकसाया गया। May I please finish? Yes, finish your point, Sanju Verma, then others also need to come in. Finish your point, yes. Yeah. Padmaja, I just want to ask one thing. If Dilip Walse Patil is the Maharashtra Home Minister, what was Anil Parab, the Maharashtra Transport Minister, doing? Giving instructions to the Ratnagiri police कि जाओ ठोक दो और अरेस्ट करो. He was clearly heard saying, and the video has gone viral on social media. What are you doing? He's asking in Marathi to the police. Why have you still not detained him? Just drag him to the police station. Okay. The language used was so despicable that it cannot be even mentioned on national television. So I want to say that there is not clear delineation of authority. Uddhav Thackeray has outsourced law and order to his bunch of vigilantes. Dr. Sumant Raman, so far of all the images that we have seen, but before you come in, मैं प्रताप तुमकर हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कल्याण में उनका वीडियो मैं दिखाना चाहती हूं। सिर्फ वो वीडियो आप दिखाइए कल्याण में, जहां कल प्रताप तुमकर बीजेपी के ऑफिस के सामने खड़े हैं, कुछ शिव सैनिक आते हैं और तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, और जब वो बीच में आते हैं तो उनको भी पीट देते हैं। ये इल्जाम लगाया जा रहा है प्रताप जी कि आपने पहले उकसाया, इसीलिए आप पिट गए, क्योंकि उकसा आप रहे थे। मैडम जी, वो वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि मैं ऑफिस में से बाहर निकला हूँ और वो दौड़े दौड़े चल के मेरे को मारने के लिए और गाली गलौज कर रहे थे मुझे। क्यों? आपने क्या किया? आपने ये कह रहे हैं आपने भी कुछ किया है, आपने पहला हाथ छोड़ा, आपने गाली दी, आपने उद्धव जी को कुछ बुरा बोला। वीडियो में देखिए आप कि मेरे हाथ छोड़ा नहीं, पहले हाथ उन्होंने छोड़ा और मैं इसको हाथ लगाया भी नहीं किसको, मैं खुद को गार्ड कर रहा था मैडम जी। आप खुद उन को लोगों गार्ड ने कर मेरे को रहे बता रहे, वो बोल रहे थे मुझे लॉक खोल के दो मुझे ऑफिस का, हमको ऑफिस तोड़फोड़ करने का है, ऑफिस तो मैं ऑफिस खोल के देगा नहीं। हाँ, ऑफिस क्यों उन्होंने तोड़ना था? कहा छोड़ी मेरे सामने। हाँ, आपने क्या पत्थरबाजी किया मेरे ऊपर। हाँ, मैंने उनको हटाने की बहुत कोशिश की। मेरे साथ 3-4 कार्यकर्ते थे बीजेपी के, उन्होंने भी हटाने की, वो बच्चों लोग को भी उन्होंने बहुत मारा उधर। बच्चों को मारा? हाँ, बच्चों को। बताइए विक्रम सिंह, ये किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर है? आपको आक्रोश आया तो आपने नारायण राणे को अरेस्ट करवा दिया, चलिए ठीक है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। प्रताप जी को क्यों मारा? साफ दिख रहा है तस्वीरों में, वो खड़े हुए हैं, आकर के शिवसेना के नेता क्यों उन्हें पीट रहे, क्यों तोड़फोड़ की? पद्मा जी देखिए, महाराष्ट्र में कानून का राज है। अगर किसी अगर इनके ऊपर हमला हुआ, ये पुलिस में गए हो, अपनी कंप्लेंट की हो इन्होंने, अगर इनके उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो तो फिर इनको बोलना चाहिए। ये गए क्या? इन्होंने कहीं कंप्लेंट की क्या? इन्होंने कहीं लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई नहीं, शिवसेना ने।
गुंडा राज तो आपका है। अरे गुंडा राज तो आपका है। अरे मोदी जी, अरे मोदी जी तो, अरे मोदी जी, रूल ऑफ लॉ है। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, देयर इज ओनली रूल ऑफ। प्रताप जी को जवाब देने दीजिए, प्रताप जी को जवाब देने दीजिए संजू वर्मा, क्योंकि अब उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि प्रताप जी आपने एफआईआर क्यों नहीं की है। अरे आप पिटे तो पिटे, बट एफआईआर क्यों नहीं की? एफआईआर की होती तो फिर अरेस्ट हुआ होता। ये गलती आपकी है। कार्यकर्ता के पैर छूते हैं, वो इतनी शालीनता दिखाते रहे, आप इतने नहीं, बिल्कुल दिख रहा है कि आप जाकर के कैसे उनके पैर छू रहे थे। वो तो उनकी गलती है कि उन्होंने आकर के खुद ही को थप्पड़ मार लिया। प्रताप जी बताइए। तीसरी वेव आ रही है और देखिए मैडम जी, एफआईआर का कॉपी मेरे पास। मोदी जी इतनी शालीनता दिखाते हैं तो अरेस्ट क्यों नहीं एफआईआर हुआ? किया है मैंने उनके ऊपर। अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अभी सरकार उनकी है, आमदार उनका है, स्थानिक आमदार उनका है, नगर से उनके थे जो हमको मारने आने वाले आए थे। जो स्टैंडिंग आमदार है उधर का, शिवसेना का है, विश्वनाथ भोईर, वो खुद था उधर खड़ा मेरे को मारने के लिए। जो महानगर पालिका उधर है अपना कल्याण डोंबिवली का, उसका अध्यक्ष है बंड्या साळवी, वो खुद मेरे को मारने के लिए आया था। उनके साथ 2-3 नगर सेवक थे, उनके 30-35 कार्यकर्ते थे और हम सब 3 से 4 जन थे सब उधर। तो बताइए विक्रम सिंह जी, एफआईआर भी करा दी, अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? आदमी पिट रहा है, कैमरे पे पिट रहा है, शिवसेना वाले पीट रहे हैं, नामजद एफआईआर कराई गई है, अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? विक्रम सिंह नहीं, इन्होंने एफआईआर कराई नहीं तो आप जरा पुलिस में जाके आप जरा पूछो, पता करो ना कि क्यों अरेस्ट नहीं हुआ है। हाँ, मैं इन्होंने कंप्लेंट कराई कि अब मैं आपको बात सुनाती सच है झूठ है, ये तो कानून का काम है पता करना। बिल्कुल कानून का काम है, बट कानून हम और आप मीडिया वाले बैठ के तय कर देंगे कौन दोषी है कौन नहीं। नारायण राणे को 24 घंटे के अंदर उठा लिया धमकी देने के लिए। नारायण राणे ने हाथ भी नहीं उठाया, उन्होंने सिर्फ धमकी दी कि मैं होता तो कान के नीचे देता। उनको 24 घंटे में उठा लिया। पर जिसने प्रताप जी को पीटा है, जिसका वीडियो दिख रहा है, जिसकी एफआईआर हो गई है, उसके खिलाफ उंगली तक नहीं उठाई। क्यों? इस धमकी का आप समर्थन करते हो क्या? धमकी का मैं कभी समर्थन नहीं करती, इसलिए मैंने शुरू में ही बोला कि कानून को अपना काम बेशक करना चाहिए। नारायण राणे को अगर अरेस्ट किया गया है, कोर्ट डिसाइड करेगा। आप ये बताइए कि जिसने प्रताप टुमकर को पीटा है, कैमरे पर एफआईआर हुआ है, वो अरेस्ट क्यों नहीं हुए? हाँ, उन पे भी होगी कार्रवाई। ये अपनी कंप्लेंट लेके जाएं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि नारायण राणे वो तो होती रहेगी, क्योंकि पिटना तो चलता रहता है, पर पिटने की धमकी नहीं होनी चाहिए। पिटने की धमकी पे इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए। नाउ सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट कि पुलिस से पूछो कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, लेट मी एक्चुअली प्ले आउट फॉर यू, बिकॉज वी एक्चुअली डिड गो टू द पुलिस एंड वी स्पोक टू पुलिस इंस्पेक्टर रंजेंद्र कोटे and asked him why is it that no arrests have been made, or rather all arrests have not been made in the Ulhasnagar case. Please listen into what he said. इसमें शामिल थे। सर, मैं ये जानना चाहता था, ये जो कल जो इंसिडेंट हुआ उल्लासनगर में, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने, सर उसका क्या स्टेटस है? उसमें स्टेटस मतलब सर उसमें क्या कोई अरेस्ट हुआ है? उसमें कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए हैं? आरोपी आइडेंटिफाई है, तफ्तीश जारी है और ढूंढ रहे हैं आरोपी को। अच्छा, अभी तो कुछ गिरफ्तारी हुई है सर? कितने लोगों की हुई है? एफआईआर हुई है, 10-12 लोगों की खिलाफ एफआईआर हुई है। नहीं, मैं पूछा सर अरेस्ट कुछ लोग हुए क्या? 2-3 लोग अरेस्ट हुए हैं? अभी तक नहीं, ढूंढ रहे हैं। अच्छा, और सर उसमें एक चीज़ और पूछनी थी, क्या ये जैसे कि वो कंप्लेनेंट का कहना था, सेक्शंस 326 और 395 को लेके चोरी जो की गई, उनका ऐसा आरोप है, चेन छीनी गई, और दूसरा ये कि जो खून आया या पैर में क्रैक है, उससे 326 भी लगाया जाना चाहिए। सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे, बात करेंगे ना, जब हाँ डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी तब करेंगे जो भी है तपास में। Suman C. Raman, 12 people have been named, and as of right now, half an hour ago, 4 people have been arrested. When alacrity was shown in arresting Narayan Rane, why isn't the same alacrity shown in arresting people who are actually engaging in violence? Yeah. First of all, Padmaja, the realization that seems to have dawned on the BJP about Shiv Sena being a party of gundas, which is what Sanju Verma seemed to say today, after it has taken them 20 years to find out this, something that has been widely written upon. So let's leave that aside. But this entire fact
comes at the most inconvenient time. As a because supporter of the if you- Congress, can I just pause you for a second and ask you, as a supporter of the Congress, you believe that Shiv Sena is a party of gundas? I am not a supporter of any. Oh, you're not a I am supporter of any person- party. Nice to know. No, I need to come in, one please. second. Okay, Of okay. course, 1 minute. Because you call out the BJP on issues does not mean one has to be a Congress supporter. This Okay. is your interpretation of things. So Shiv Okay. Sena is a party of gundas, according to you, just to be clear. No. Just to be clear, when people accuse the Shiv Sena of being a party of goons... But do it you was the believe the Shiv BJP Sena is a which party of defended that. goons? Let's I leave the don't- BJP I have aside. never- BJP is represented by Look. Sanju Verma. Look. As an Look. individual who is opposed Shiv Sena- ideologically to the BJP, do you believe Shiv Sena is a party of goons? Shiva Sena, in its early days, was known for strong arm tactics. But Over Shiv the Sena last in year its and a half- recent days, as of Yeah, in its yesterday, is a recent party of days- goons, yes or no? No, yesterday is a fight between two family members No, which has- Padma, you who need have to come fallen in. out. No. Who have fallen How out is it a with fight each other. between two family members? Just a second. I just want fallen to out listen to with Mr. each Sumansi other. Raman. Come on. How is What it a is the fight between two ideology family difference? members? It is between two family members who are now estranged. Estranged family Which two members. family members? Shiv Sena and BJP. Then 2 how months does back- it give them the 2 license months to go back- around beating people? Wait, No, just a second, wait. sir. You Let explain me this very tell you. simplistically. How can you Yeah. justify any individual being beaten on the streets? No. What is police the of justification? justifying violence. There is no justification of violence. So If you is the Shiv recall- Sena a party if of you goons because they are recall- engaging in violence which is not justified according to you? No party becomes a party of goons because of incidents which happened once or twice. Once or Now, twice? the Shiv Se- Yeah, Once when or did it twice? happen in the last 2 years? But sir, In the let last me 2 just years. remind you that just The last 2 8 years. months ago, an ex-serviceman in Mumbai was beaten and was left with a bloodied eye because he shared a cartoon on his phone Yeah. of Uddhav Yeah. Thackeray. A cartoon. He was beaten up by Now, Shiv Sainiks. I think- Now I you've think had I think at the least same 5 question different should be asked to episodes Sanju Verma. of people engaging in stone One pelting, second, beating up one second. individuals, and not to mention breaking the One- COVID law just one as of second. yesterday. 1 second. Was the Shiv Sena a party of goons for the last 20 Sir, years? I am want to When know BJP your wasn't point of alive? view as an Can I please just have Sumansi Raman? Sumansi Raman, as of yesterday, do you believe the Shiv Sena is a party of goons, or you think these stray I do incidents not. of violence and taking the law in your hands is do okay? not. Here was a provocation, clear provocation. What was the provocation? A union minister threatening to slap the chief minister and leader of the Shiv Sena. So you're saying that everyone in the BJP deserves to be beaten because of what Narayan Rane said? No, nobody said that. Then why was a BJP worker beaten for what Narayan Rane has said? BJP workers should not have been beaten. The BJP workers. But since he was beaten, do you then agree as an unaligned person that the Shiv Sena is a party of goons? Shiv Sena today has significantly moved away from the image of being a party of goons. Especially in the last couple of years, they have become extremely moderate compared to what they were earlier. Very nice. And as far as BJP is concerned, I think that... No. So let's just pause over there. I think this is a great point. Since you said that the Shiv Sena has actually moved away from their earlier image when they were in alliance with the BJP, and now under the calming influence of the NCP and the Congress, they are a calm, middle-of-the-road party. I think it's a good point for all of us. Why don't you ask people... No, it's a good point for all of us to listen to the Shiv Sena MLA from Hingoli, who is as moderate, calm, reasonable and peace-loving as they come. Yeah. Let's listen to what he said after Narayan Rane's arrest, by the way. Listen it. Yeah. नारायण राणेला मला संदेश द्यायचा आहे. अरे तू काय सांग, तू कुठे यायचं? तुझ्या घरामध्ये घुसून मारण्याची ताकद आमच्यामध्ये आहे. माझं पोलीस प्रोटेक्शन थोडंसं बाजूला कर. हा संतोष बांगर शिवसेनेचा मावळा, छत्रपती रायाचा मावळा, एकटा येऊन तुझ्या जर चारी कोणी जर चीट नाही केलं, तुझ्या जर कोथळा जर बाहेर नाही काढला, तर संतोष बांगर. Do you think that's a moderate person? Basically saying, I'll enter your house and I'll smash your face.
Yeah, okay. Basically, here is a party MLA who's trying to curry favor with his boss by proving his loyalty. I think that if there is a threat of violence, I don't understand Marathi, but if there is a threat of violence implied, action should be taken against the MLA. There is no doubt that action should be taken against the MLA. The point And yet there is no action taken against him. It's been 12 hours already. Not even an FIR filed. Those who have an FIR not arrested. Those who are seen threatening, no FIR. Look, Padmaja. 2 months back, in June, Mr. Thackeray goes to Delhi, meets the Prime Minister. There is persistent talk. One MLA writes a letter saying that the BJP... Sir, why are you getting into letters? I am not even interested in the politics. My question to you is simple. How can we be so blasé about this kind of street violence? Just because this is a party which is now in a secular alliance. Was the Shiv Sena still in alliance with the BJP, everyone would have gone blue in the face, crying blue murder. We would not be having this debate. No, we definitely would be having this debate, sir. We would definitely be having this debate. Make no mistake about it. I would be having, I don't know about you. I would be having this debate. I would definitely be having this debate. I don't know about you though. Although, let me remind you that when Mr. when Kailash Vijayvargiya's son took a bat to a government employee, this is the very place where we had a debate. So maybe your memory is short-lived, but we definitely have those debates. That being said, I want to know why this MLA, who is openly issuing a threat, not in jail. What he has said is far worse than what Narayan Rane said. Narayan Rane said, मैं कान के नीचे बजाऊंगा. This man is saying, मैं घर में घुस के तेरा चेहरा फोड़ दूंगा. Now, which is worse? Action should be taken against him. Nobody is defending that. Sanju Verma, nobody is defending the violence. What kind of a debate is this? You don't allow me to make my point. This can't be about Sumant Raman all the time. You've given him disproportionate time. Sanju Verma, go on, make your point. You know, I just want to say one thing very clearly. That if Narayan Rane so much is saying कि काम के नीचे दूंगा and not actually indulging in violence, he was arrested overnight. I simply want to know one thing. Varun Sardesai is the first cousin of Aditya Thackeray, and he has been spearheading this vigilantism and vandalism. Why was Varun Sardesai today honored with garlands and welcomed like a hero by the Chief Minister? Is it because Varun Sardesai is the first cousin of Aditya Thackeray? This means that state-sponsored violence is being rationalized and normalized by the Uddhav Thackeray dispensation. I'll just end by saying one thing. Who was spearheading violence in Nagpur? Shiva Sena's Nitin Tiwari. Has Nitin Tiwari been arrested? Okay, let me ask Abu Azmi. In fact, Abu Azmi of the Samajwadi Party joins us now. Abu Azmi साहब, क्यों ये लोग अरेस्ट नहीं हुए हैं? वरुण सरदेसाई जो कि नारायण राणे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, एमएलए हिंगोली के जो कि ओपनली थ्रेट दे रहे हैं, ये लोग अरेस्ट क्यों नहीं हुए हैं? इनका इनफैक्ट ऑनर किया जा रहा है. नहीं, मैं आपसे पूछूं कि बीजेपी के लोग इस मुल्क में खुले आम जो है मॉब लिंचिंग में लगे हुए हैं, तो कोई डिस्कशन ही नहीं होता है. इन्होंने कानपुर में एक बच्चे उठा करके एक बच्ची के बाप को इतना मारा इन लोगों ने, उस पर कुछ नहीं गए पुलिस स्टेशन में, उनको एक नोटिस मिल गई. देखिए, आज नारायण राणे और शिवसेना की लड़ाई चल रही है, तो पूरे देश में इसके पूरे हलचल मची हुई है. लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो. मैं कह रहा हूँ कि ये शुरुआत किसने किया? एक्शन का रिएक्शन होता है. सुनिए, एक्शन किसने किया? एक्शन एक मुख्यमंत्री को कान के नीचे बजाऊंगा इस तरह के अल्फाज बोलेंगे तो कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता है. तो उसका रिएक्शन तो नारायण राणे को जेल में डाल के वो ना. आप कह रहे हैं कि अगर कोई बोले कि मैं उसको थप्पड़ मारूंगा, उसके जाके किसी को भी पीट देंगे सड़क पे. वो लाइव पे जा रहे हैं ना, माइक लगाया उनके कॉलर माइक. रिएक्शन तो ये होगा कि पुलिस उनको अरेस्ट करेगी, परंतु एक्शन के रिएक्शन होता है. शुरुआत किसने किया? ये बात किसने किया? क्या रिएक्शन था? और यहाँ पे क्या हो रहा है? जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, क्या बीजेपी की सरकारों में पुलिस वालों को बीजेपी के लोग मारते हैं और बीजेपी के और पुलिस वाले उनके सामने हाथ जोड़े नतमस्तक रहते हैं. अबू आजमी साहब, आप जो
एक्शन रिएक्शन का आर्गुमेंट दे रहे हैं, ये तो किसी दंगे को भी आप जस्टिफाई कर देंगे। परंतु एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि रिएक्शन ये था। ये तो लोग यहाँ दिल्ली दंगों के बारे में कहते हैं कि सड़कें जाम कर दी थी इसीलिए वहां वायलेंस शुरू हो गया। ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना। फिर तो सारे जितने हमारे देश में दंगे हुए हैं उनको ऐसे ही जस्टिफाई कर देंगे। वहाँ दिल्ली में जो हुआ था कोई समय ये नहीं, ये सब बीजेपी के लोग गुंडागर्दी करते हैं देश के अंदर, कानून को मानते नहीं, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। आप ये बताइए कि बीजेपी के नेताओं को छोड़िए, नारायण राणे को छोड़िए, प्रताप तुमकुर करके बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं, उनको घसीट घसीट के पीटा, उनकी क्या गलती थी? उन्होंने क्या किया उद्धव ठाकरे के साथ? वो भिजवा दिए ना, वो भिजवा दिए। नहीं तो पुलिस केस लेगी, सब केस लेगी, लेकिन जहाँ सरकारें जिसकी रहती है वो बड़ी मस्ती में रहता है। मैंने बीजेपी की मस्ती देखा है चारों तरफ। अब जरा इनको शेर का सवा से मिला है तो बहुत घबराहट हो रही है। तो मैं तो कह रहा हूँ ठीक है भाई, केस लो ना, जो लोग बदतमीजी कर रहे हैं जरूर केस लो। संजू वर्मा। ओके, प्रताप जी ये बताइए कि अब ये कहा जा रहा है कि इवेंचुअली एक्शन हो जाएगा। कभी होएगा? अभी 2 दिन हो गया उसको। May I come in, please? संजू वर्मा। Yeah. Padmaja. Hello. Yes, go on, Sanju Verma. Yeah. What I want to say is this. You know, I want to know, Padmaja, has Santosh Bangad, the Shiv Sena goon who happens to be a legislator from Hingoli, has an FIR been filed? Has he been arrested? Has Mohammad Aslam Sheikh, one of the goons who vandalized property in Nashik, has he been arrested? Has Mahendra Patil, who blackened the face of our corporator, has he been arrested? He also assaulted Pradeep Ramchandani, our corporator. Has he been arrested? No. Has Nitin Tiwari, the Shiv Sena president from Nagpur, been arrested for vandalizing property of BJP in Nagpur? No. Has Rajendra Gaikwad, the Shiv Sena president of Yavatmal, been arrested for vandalizing the BJP office in Yavatmal? No. Has Sandeep Gide, the Shiv Sena president from Chandrapur, who vandalized the BJP office in Chandrapur, been arrested? The answer is no. The point is, why is Uddhav Thackeray going slow on making these arrests? You claim you will arrest people involved with the Palghar lynching of sadhus in April 2020. You arrested 75 people and within 48 hours, you released all of them. Everybody was given bail. Till date, not a single person has been brought to justice for lynching 60-year-old sadhus. What kind of state-sponsored violence has the Shiv Sena-led Uddhav Thackeray government unleashed on Maharashtra, which is supposed to be one of the biggest contributors to India's GDP, at least in Uddhav Thackeray came in. Mumbai is supposed to be India's financial capital. These people have completely ruined the reputation of Mumbai as an investment destination. Abu Azmi ji, ये state sanctioned violence है। मैडम, I'm asking you one question, please reply me my particular question. आपने कभी डिबेट किया क्या कि मुजफ्फरनगर के कितने केसेस विथड्रॉ कर लिए गए? बीजेपी ने विथड्रॉ किया, इन्होंने वहां मर्डर किए थे, लूटे थे, रेप किए थे, इन पे क्यों नहीं आपने इस पे डिस्कशन किया? आज अगर एक बीजेपी के मिनिस्टर पे हमला हो रहा है तो आप सब लोग ऐसा चिल्ला रहे हो, क्या मुजफ्फरनगर के केसेस पे आपने इतना बड़ा डिबेट किया था? क्या वो आदमी नहीं है? उनको पिट जाना चाहिए। जो है ना, उनके पिटने पे अबू आजमी साहब कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। वो तो क्या आदमी नहीं थे मुजफ्फरनगर के जो 65 लोगों को मार दिया गया, जला दिया गया और उन पे केसेस किए गए? समाजवादी पार्टी की सरकार ने केसेस किया था, तो बीजेपी ने उसको चैलेंज किया जाना चाहिए। आप लोगों ने उस पे इतना उसको बेशक चैलेंज किया जाना चाहिए, बट कम से कम वहाँ FIR तो हुए अबू आजमी साहब। यहाँ तो FIR भी नहीं हो रहे। जोर से बोला, यहाँ तो FIR भी नहीं हो रहे। एक आदमी पिट गया, एक आदमी एक MLA धमकी दे रहा है। सब हो जाएगा। आप खुद नेता हैं, एक MLA धमकी देता है किसी को पीटने की और FIR तक नहीं होता। कभी आपने ऐसा देखा है? वो भी मुंबई जैसे शहर में। अबू आजमी साहब, अरे मैडम, MLA और MPO ने वहां पर आग लगा दिया, मुजफ्फर में 65 लोग मार दिए गए, जला दिया गया, कई लाख लोग बेघर हो गए थे। मैडम, कोई शोर नहीं मचाता है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रही है। अब शिवसेना वाले तो है ना, तो जरा आगे अपने रंग में वो लोग ठीक है। अब उनके नेता को कह दिया कान के नीचे बजा दूंगा, वो रंग में आ गए तो इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं, सब हो जाएगा ठीक। तो आप कह रहे हैं कि शिवसेना का रंग ही यही है और अपने रंग में आकर के 1, 2, 10, 12, 50 लोगों को पीट दिया, अरे वहीं से तो रंग उनका यही है।
अरे एक मामूली आदमी ये कह देगा कि मुख्यमंत्री के कान के नीचे बजा दूंगा, ये अल्फाज कैसे हैं? मामूली आदमी बजा देगा कान के नीचे। अगर मुख्यमंत्री की रिस्पेक्ट है तो यूनियन मिनिस्टर की रिस्पेक्ट नहीं है, एमपी की रिस्पेक्ट नहीं है। अबू आजमी साहब मामूली आदमी, सभी मामूली आदमी है। अरे वो तो इसलिए बना दिया गया ना कि मैडम, इसलिए बना दिया गया ना, मंत्री इसलिए बना दिया गया ना कि किसी तरह से वो कुछ जोड़ तोड़ करे तो बीजेपी की सरकार बन जाए, ना मंत्री कहाँ बनते हो। संजू वर्मा, या पद्मजा, व्हाट्स द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज, ये कह रहे हैं कि छोटा छोटा कभी कभी लोग उत्तेजित होकर के ये सब कर देते हैं। मामूली से आदमी है नारायण राणे, उनकी हिम्मत कैसे हुई उद्धव ठाकरे के इंसल्ट करने की? तो ये तो होना ही था। पहली बात तो ये, नारायण राणे पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के। दूसरी बात, वो रेवेन्यू मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तीसरी और सबसे अहम बात, टुडे ही इज द कैबिनेट मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस इन द मोदी गवर्नमेंट। तो इसीलिए जरा सोच समझकर बोलिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग छोटे और बड़े की बात नहीं है। देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, देयर शुड नॉट बी द रूल ऑफ ठगरी। आई वांट टू आस्क यू वन मोर थिंग। नारायण राणे की बात छोड़िए, उद्धव ठाकरे ने खुद कहा था 2018 में योगी आदित्यनाथ पर चप्पल से उनकी पिटाई होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश। तो मैं आज ये पूछूंगी, कल उद्धव ठाकरे को जब गिरफ्तार करेंगे हम, तब आप यही लॉजिक देंगे क्या? मदन शर्मा नामक एक नेवी के ऑफिसर को आपने सितंबर, मैं तो वही बोलूंगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने देश में बहुत लोगों को परेशान किया है, आज तुमको कोई मिल गया है तो ठीक है ना, जरा हमको भी लगता है कि हाँ जरा टक्कर होने दो। उद्धव ठाकरे वाज एनरेज्ड बाय, दैट इज द टॉलरेंस लेवल। अबू आजमी साहब इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए। बहुत पहले की बात नहीं है, 3 साल पहले की बात है, जब उद्धव ठाकरे ने बोला था कि योगी आदित्यनाथ की हिम्मत कैसे हुई कि चप्पल पहन करके वो बाला साहेब की मूर्ति पे माल्यार्पण करने गए, उनको उसी चप्पल से पीटना चाहिए। तो फिर तो आपके लॉजिक से जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो फिर तो उद्धव जी को भी जेल में डालना चाहिए आपके लॉजिक से। तो क्यों नहीं बीजेपी ने बोला उस वक्त? तो क्यों नहीं उस वक्त उन्होंने बोला? क्योंकि साथ में जब इनका संगम था, बात साथ में ये लोग अलायंस में सरकार चला रहे थे, ये तो चप्पल मारेंगे तो बर्दाश्त कर लिया उन्होंने। क्यों नहीं? ये संगम टूटने की बात की बात है, ये संगम टूटने की बात की बात है, जब उद्धव जी ने बोला कि योगी आदित्यनाथ को चप्पल से पीटो। तो मैडम, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में क्यों जोश आया? अपने मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश क्यों नहीं आया? यहाँ पे शिवसेना के कार्यकर्ताओं में जोश आ गया। शिवसेना गुंड, संगम टूटने के बाद बीजेपी हैज नॉट एंगेज्ड इन विजिलेंटिज्म। डू यू गेट? ये बताइए अबू आजमी जी, अब महाराष्ट्र में आज के दिन 3 FIR हो गए हैं उद्धव साहब के खिलाफ। आप इस बात के हिमायती हैं कि उस FIR पे यूपी पुलिस की टीम आकर के उद्धव साहब को गिरफ्तार कर ले, यही इसी बात के लिए कि योगी आदित्यनाथ को चप्पल से मारूंगा, इस बात की FIR हो गई है। कल को आपको भी वाहवाही करनी चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, आपको कहना चाहिए। अगर भगवान ना करे कल को उनको अरेस्ट कर ले। मैं पूछता हूँ, सुनिए, राज ठाकरे के खिलाफ 100 से ज्यादा FIR यूपी में, बिहार में, झारखंड में, हरियाणा में हुई। आज तक राज ठाकरे को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? कोई पूछने वाला है क्या हमारे यूपी के लोगों को अपमानित करोगे और तुम घूमते रहोगे? क्या रूल ऑफ लॉ है? आपकी सरकार है, अब तो आपकी सरकार है अबू आजमी साहब। आप पूछिए ना मुख्यमंत्री से, आप पूछिए, अगर राज ठाकरे को अरेस्ट करवाना है, अब तो आपकी सरकार है, पूछिए मुख्यमंत्री से अरेस्ट क्यों नहीं होते? पूछ तो रहा हूँ, क्यों नहीं अरेस्ट किया गया आज तक? राज ठाकरे, हमारी सरकार क्यों नहीं? राज ठाकरे को इतना ज्यादा मर्डर हुआ, लूटे गए, मारे गए, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, लूटी गई। एक सेकंड अबू FIR हुए, लेकिन आज तक हाथ में हथकड़ी नहीं लगी। अबू आजमी साहब स्टेशन पे भी नहीं गया। अबू आजमी साहब, संजू वर्मा आपसे सवाल पूछ रही है। एक सेकंड हमारा टाइम। संजू वर्मा, व्हाट्स योर क्वेश्चन? आपने कहा नहीं, मैं किसी का जवाब देने नहीं बैठा हूँ। मैंने आपसे कहा था मैं डिबेट में बैठना नहीं चाहता हूँ, मुझे डिबेट में बैठना ही नहीं है। मुझे आपको वर्ड का सवाल पूछे, मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा, निकाल दूंगा मैं। अच्छा अबू आजमी साहब, मुझे बस एक चीज बता दीजिए, कि आज भी अगर कोई MLA बोल रहा है कि मैं नारायण राणे को घर में घुस के ठोकूंगा, क्या उसको जेल डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जैसी करनी वैसी भरनी, तो उस पर भी अप्लाई होना चाहिए ना।
हाँ नहीं बिल्कुल डालना, बिल्कुल केस होना चाहिए, बिल्कुल केस होना चाहिए और मुझे लगता है केस जरूर होगा। केस होना चाहिए और अरेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। केस होगा, अरेस्ट भी होगा संजू वर्मा, रूल ऑफ लॉ है महाराष्ट्र में, सब पे होगा। सारे शिवसेना के ऐसे ही अरेस्ट होना चाहिए। तूने खाली बोला है ना, यहाँ बोला है सिर्फ कानपुर में मारा सबके बीच में और केस हुआ, गया और छूट गया, वैसे अरेस्ट कर लो उसको नहीं ना। Okay, no personal comments. Yes, please, what's your question? Dinosaur be asked to keep quiet. Okay. पद्मजा, देवेंद्र फडणवीस ने सही बोला। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का? पुलिस इज हैंड इन ग्लव। पद्मजा जी, मैं आपके चैनल के थ्रू पूछना चाहती हूँ, डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र संजय पांडे, आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया? नासिक में, यवतमाल में, चंद्रपुर में, चिपलूण में, डोंबिवली में। बीजेपी वर्कर्स हैव बीन ब्रूटलाइज्ड एंड ऑफिसर्स रैंसैक्ड। मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस हेमंत नगराने जी, when will you arrest Aditya Thackeray's cousin Varun Sardesai, who was spearheading the attack against Narayan Rane and his supporters and the BJP? Will you arrest Varun Sardesai? Will there be rule of law or just rule of the ruler? बीजेपी का देखा है। आप किस बात से खुश हैं? आप किस बात से खुश हैं अबू आजमी साहब? मैं खुश हूँ कि जब पूरे देश में बीजेपी का हाँ बोल रहा हूँ सुनिए ना। आज आप इतना जोर से चिल्ला रही है ना, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने रूल ऑफ लॉ लागू करने के लिए इतनी बातें किया है, लेकिन जब देश में दलितों और मुसलमानों के साथ बार बार ये होता है ना, तो देयर वाज नो रूल ऑफ लॉ, कोई चिल्लाता नहीं है। और जब कानपुर में पूरे भरे बाजार में मार के ले जाते हैं तो एफआईआर होता है और जाते हैं 2 मिनट में छूट कर आ जाते हैं। जब आगरा के अंदर हमारी मीटिंग में घुस करके ये पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है तो उसको छोड़ देते हैं, और हमारा आदमी जब बोलता नहीं है तो उसको डाल देते हैं यूएपीए में। इसलिए खुश हूं मैं, जैसे कुछ ऐसा। रूल ऑफ लॉ हर जगह होना चाहिए अबू आजमी साहब, भले से ही वो कानपुर हो या उज्जैन हो। और उज्जैन में जहाँ पे एक मजलूम आदमी को मारा गया, वहां पर दोनों तरफ पे एफआईआर हुआ, और जो लोगों ने भीड़ लगा करके प्रोटेस्ट करने की कोशिश की पुलिस स्टेशन के बाहर, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुआ, जैसे कि होना चाहिए। पर ये कह के कि ये ठोक तंत्र है और यहाँ पर ऐसे ही चलेगा, ये ठोक दो उखाड़ दो वाली मेंटालिटी से कोई भी सरकार या कोई भी राज्य यहाँ चल रहा है। यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठोक तंत्र चलाते हैं, ठोक दो बोलते हैं। ठोक तंत्र कहाँ चलता है वो तो सब जग जाहिर है, सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच संजू वर्मा and all gentlemen for joining me. And before I go, let me remind you that as of Saturday there were 36 FIRs that had been filed against Narayan Rane for his Jan Ashirwad Yatra only for violating COVID protocol. 36 FIRs. Now, keeping that in mind, let me show you these images yesterday from Mumbai where the Shiv Sena protested outside Narayan Rane's residence. Tell me, what about COVID protocol here? Will there be FIRs for this protest as well? Thanks for watching.